ذرائع ہیں ہمارے جو سفارتی ذرائع ہیں وہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں 3-4 چیزیں بہت مختلف ہونے جا رہی ہیں. بائلیٹرل وزٹس اس سے پہلے بھی پاکستان کے ہوئے میں مینشن کر چکا ہوں پچھلے سیگمنٹ میں, لیکن یہ غالباً پہلا موقع ہے کہ روسی صدر کی جانب سے یا میزبان ملک کے سربراہ کی جانب سے پاکستان کے جو وزٹنگ سربراہ ہیں, سربراہ مملکت یا سربراہ حکومت, ان کو بائیلیٹرل دورے کے دوران لنچ یا ڈنر کے اوپر ہوسٹ کیا جائے گا. ایک ورکنگ لنچ کا جو تذکرہ شہزاد انور فاروقی صاحب نے کیا, میرا نہیں خیال جہاں تک میری یادداشت ہے ایسا کوئی اس سے پہلے موقع نہیں رہا کہ اس قسم کا لنچ جو ہے وہ ہوسٹ کیا گیا ہو پاکستانی ڈیلیگیشن کے لیے یا ڈیلیگیشن کے سربراہ کے لیے. دوسرا جو وہ ٹوم آف دی انون میں جانا ہے, جو دوسری جنگ عظیم کی ان کی یادگار ہے, اس کے بعد گریٹ ہال میں جانا, اور وہاں پر پہلے ہمیں یہ علم تھا کہ ڈیلیگیشن لیول ٹاکس ہونے ہیں. پاکستان کے وزیراعظم نے ہمارے ڈیلیگیشن کو لیڈ کرنا ہے اور ادھر سے ولادیمیر پوٹن نے کرنا ہے, اور ڈیلیگیشن لیول ٹاکس ہونی ہے. ایک ایڈیشن ہوئی ہے فائنل, ابھی ظاہر ہے کہ اس میں تفصیل تو سامنے آئے گی, لیکن تقریباً 45 منٹ کی کا وقت جو ہے وہ دیا گیا ہے ون آن ون تیت میٹنگ جس کو کہا جاتا ہے اس کے لیے. تو یہ بڑا ایک میرا خیال ہے کہ پازیٹیو سائن ہے. اور ہوگا کیا اور کن معاملات پہ بات ہوگی جب آپ پاکستانی ڈیلیگیشن میں وزیراعظم کے رائٹ پر بیٹھے ہوئے وزراء اور ان کے پورٹ فولیوز کو دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کون گیا تو کیا بات ہوگی. آپ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر گئے ہیں, آپ کے وزیر خارجہ گئے ہیں, آپ کے پلاننگ کے, آپ کے جو تجارت کے, یہ لوگ گئے ہیں, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا بات ہے. اور 23 سال بعد پاکستانی وزیر اعظم رشیا کا دورہ کرنے جا رہے ہیں, لیکن دوسری طرف سوشل میڈیا پر ہم دیکھ رہے ہیں بحث چھڑی ہوئی ہے کہ اس سے پہلے بہت ساری اور بھی شخصیات ہیں, گیلانی صاحب ہو گئے, نواز شریف صاحب ہو گئے, پرویز مشرف صاحب ہو گئے, مینی مور, جو کہ رشیا جا چکے ہیں. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. تو میں چاہوں گی جو کنفیوژن ہے اس کو کلیئر کر دیں کہ کیا پہلی جو شخصیات جا چکی ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ اس بار وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہے وہ روس کا دورہ کر رہے ہیں. نہیں, ہماری ایک کنفیوژن صرف انہیں ہے جن کو معلوم نہیں ہے, جن کو علم نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ یہ ایک لا حاصل بے معنی اور لا یعنی گفتگو ہے. اس وقت آپ اٹھا کر دیکھیں انڈین میڈیا جو کہ اس کو ایک اسٹریٹجک اعتبار سے بہت اہم دورہ کہہ رہا ہے, وہ انڈین میڈیا جو اسے کہہ رہا ہے کہ یہ ایک واٹر شیڈ مومنٹ ہے روس اور پاکستان کے تعلقات میں. انڈین میڈیا کو آپ اٹھا کر ان کے لوگوں کے تبصرے سنیں, اشوک سوائن کو سنیں, پروین سمانی کو سنیں, سواسنی حیدر کا تبصرہ سنیں, رضا الحسن لشکر کا تبصرہ سنیں, پلکی شرما اپادھیا کی گفتگو سنیں, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ دورہ کتنا اہم ہے. بات یہ ہے کہ یہ کریکٹ سٹیٹمنٹ از کہ 23 سال کے بعد کسی بھی پاکستانی وزیر اعظم کا پہلا دو طرفہ بائیلیٹرل آفیشل وزٹ ہے. یہ سٹیٹمنٹ ہے کریکٹ سٹیٹمنٹ. اس میں کسی کو بھی کریز سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. آسان سی بات ہے کہ اس سے پہلے جو دورے ہوئے ہیں, نواز شریف صاحب جو اوفا گئے تھے, جب آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے مودی کے سامنے وہ کشمیر والا وہ ڈیکلیریشن میں نہیں ڈلوایا تھا, زرداری صاحب گئے تھے, کارٹنبرگ کا دورہ ہوا تھا, پرویز مشرف صاحب 2003 غالباً مارچ کے مہینے میں گئے تھے. یہ جو دورے تھے وہ صدور تھے, ان کے بائیلیٹرل وزٹ ضرور تھے لیکن وہ صدور تھے. جو نواز شریف صاحب یہ دیگر دورے ہوئے ہیں وہ تھے ملٹی لیٹرل وزٹس. اب اگر کسی کو یہ بات نہیں سمجھنی تو اس میں بحث کرنے کی میرا خیال ہے ضرورت ہی نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک انتہائی اہم موقع ہے اور پوری دنیا اس وقت سوری بائیلیٹرل اور ملٹی لیٹرل جو ہے اس کا فرق بتا دیں تاکہ جو سمجھنا چاہیں چلیں وہ تو سمجھ جائیں. بائیلیٹرل یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کسی ملک کے صدر کو یا وزیر اعظم کو دو طرفہ سرکاری دورے کی دعوت دیتا ہے اور اس ملک کا جو سربراہ ہے وہ آتا ہے, بائیلیٹرل ایجنڈا ہوتا ہے, دو طرفہ تعلقات پر بات ہوتی ہے, اس میں مختلف قسم کے پروٹوکولز ہیں جن کو مد نظر رکھا جا سکتا ہے. آپ ان کو 21 توپوں کی سلامی دیتے ہیں, آپ ان کو گارڈ آف آنر دیتے ہیں, آپ ان کو جو ہے ایک زہرانے پہ یا عشائیے کے اوپر مدعو کرتے ہیں, آپ ان کے ساتھ ون آن ون ہیڈ تحت جس کو میٹنگ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں, آپ ان کے ساتھ ڈیلیگیشن لیول ٹاکس کرتے ہیں, آپ ان کے ساتھ جوائنٹ سٹیٹمنٹ مشترکہ اعلامیہ یا پھر آپ ایشو کرتے ہیں, ایک جوائنٹ پریسر کرتے ہیں, ایک جوائنٹ پریس کانفرنس کرتے ہیں. یہ ہوتا ہے جی بائیلیٹرل وزٹ. جو ملٹی لیٹرل وزٹ ہوتا ہے کہ پاکستان OIC کا اجلاس کرواتا ہے, ابھی تو خیر پاکستان جو ہے وہ کروا رہا ہے, وہ CFM ہے, کاؤنسل آف فارن منسٹر, بٹ ہم تصور کر لیں کہ پاکستان سمٹ ہولڈ کر رہا ہو تو 57 ممالک کے جو سربراہان ہیں اسلامی ممالک کے, اگر وہ پاکستان آتے ہیں, 56 پاکستان کے علاوہ جو 56 ممالک ہیں ان کے
सदूर या वज़ीर आज़म अगर पाकिस्तान आते हैं तो क्या वो पाकिस्तान का दो तरफा दौरा कर रहे होंगे? क्या उन सबको ये प्रोटोकॉल दिया जाएगा? वो फर्क है, वो मल्टीलैटरल फोरम है, इसी तरीके से सार्क है, इसी तरीके से SCO शंघाई ताउन तंजीम है, इसी तरीके से ब्रिक्स है, इसी तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा है, उसका UNG है। तो ये एक आसान सी बात है। विंटर ओलंपिक्स करवाई, सदर शी जिनपिंग ने 32-33 ममालिक के सरबराहान को उनकी रॉयल फैमिली को शिरकत की दावत दी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान भी उसमें शामिल थे। वो एक मल्टीलैटरल विजिट था। तो बायलैटरल और मल्टीलैटरल का अगर आपको फर्क नहीं पता तो जबरदस्ती का तबसरा और तज्जिया करने की जरूरत नहीं है। इससे पहले किसी भी अगर वज़ीर आज़म ने रूस का बायलैटरल दौरा किया था, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ थे, वो 1999 में हुआ था और उस वक्त रूस जो है वो दुनिया के लिए ओपन अप हो रहा था। पाकिस्तान ने उस वक्त भी इस मोमेंट से फायदा नहीं उठाया और वही 1999 था जब रूस ने भारत के साथ जो उनकी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसका मुआहदा किया और उसके 20 साल के रनअप में देखें कि वो ताल्लुकात कहां पहुंचे और हम कहां पर खड़े हैं। ईशान नकवी साहब, आप मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में कह चुके हैं कि ये एक बैलेंसिंग एक्ट है, लेकिन दुनिया इसको ये समझ रही है कि हम शायद किसी ब्लॉक का हिस्सा बन रहे हैं। भारत जो है वो माजी में रशिया के साथ जिस तरह के उसकी शराकत दारी रही, अब वो अमेरिका के करीब हुआ। पाकिस्तान अमेरिका के ज्यादा करीब था, अब रशिया के करीब होता दिखाई दे रहा है। लेकिन हमारा ये बैलेंसिंग एक्ट जो है, इसको किसी ब्लॉक में जाने के मामले को इस अंदाज में जो देखा जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, उसकी वजह है जियो स्ट्रेटेजिक हालात, उसकी वजह है पाकिस्तान का माजी, उसकी वजह है पाकिस्तान की पॉलिसी में एक बड़ी तब्दीली। आपने गौर किया होगा ये जो जियो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, ये एक डिफरेंस है पाकिस्तान की पॉलिसी में। और जो इस वक्त के जियो स्ट्रेटेजिक हालात हैं, जो यूक्रेन की सूरत हाल है, जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है, जो रूस और चीन के दरमियान एक ब्लॉक बनता हुआ दिखाई दे रहा है और जिस सर्द जंग का तज़किरा किया जाता है, जिसका आगाज अमेरिका में नए सदर जो बाइडन के आने के बाद से शुरू हो गया। कुछ इवेंट्स हम बहुत ज्यादा मेंशन करते हैं, उनका 4 फरवरी का खिताब जो स्टेट डिपार्टमेंट में था वहां से बातें ट्रिगर करती हैं। जून के महीने में वो कार्बिस बे में G7 इजलास करते हैं, उसके बाद नेटो सरबराह इजलास करते हैं, वो ऑकस अलायंस का ऐलान करते हैं, वो समिट फॉर डेमोक्रेसी करवाते हैं और उसके बदले में चीन और रूस उनके दरमियान ताल्लुकात। असल चीज जो इसमें देखिए, ये अपने हमारे मीडिया में बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे मीडिया हाउसेस की अपने व्यूअर्स के साथ नाइंसाफी है कि वो वक्त जिस वक्त आपको लोगों को ये बताने की जरूरत है। देखिए, ये ताल्लुक मैं आपको बता सकता हूं कि ये लोगों को ये बात समझने की जरूरत है, ये ताल्लुक PTI का जो है वो रूस के साथ नहीं है, ये इमरान खान और सदर पुतिन का ताल्लुक नहीं है, ये रियासत पाकिस्तान का रशियन फेडरेशन के साथ ताल्लुक है। और यहां पर कुर्सी के ऊपर कौन बैठा है उससे हटकर इंपॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान जो 74 साल, हम 75 साल के होने वाले हैं, 74 साल तक अमेरिका के कहने पर मुख्तलिफ ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को डाउनग्रेड रखता आया है, जिसमें हमारे हमसाया ममालिक शामिल हैं, जिसमें रूस शामिल है, जिसमें दीगर ममालिक शामिल हैं। तो अगर आप तब्दीली कर रहे हैं, एक तवाज़ुन लाने की कोशिश कर रहे हैं, आप जाहिर है कि फिर उस तवाज़ुन को यह भी देखा जाएगा कि जैसे पाकिस्तान जो है वो उठ के रूस के और चीन के कैंप में चला गया है। दरअसल बात यह है कि हम तो वही कर रहे हैं, इंडिया 74 साल से वो करता आ रहा है। वो दोनों तरफ से उनके अभी दिसंबर के महीने में, दिसंबर के फर्स्ट वीक में पुतिन का दौरा हुआ, वो गए, दिल्ली उनकी मुलाकात हुई और यहाँ पर साथ ही उनकी जो अमेरिका है उसके साथ भी रिलेशनशिप है। वो दोनों तरफ से अपने बैलेंस के साथ अगर ताल्लुकात रख सकते हैं, पाकिस्तान जो है क्यों नहीं रख सकता दोनों ममालिक के साथ ताल्लुकात, एक बैलेंस रखने। लेकिन लेबल क्यों लगाया जा रहा है फिर कि हम रशियन कैंप या इंडियन कैंप, चाइनीज कैंप के अंदर दाखिल हो रहे हैं, उस स्क्वाड का हिस्सा बन रहे हैं? अच्छा, उसकी वजह यह है कि आप जो बाइडन और जो अमरीकी इंतजामिया है, या सिर्फ ये अमरीकी इंतजामिया नहीं, तसलसल के साथ जो अमरीकी इंतजामिया रही हैं, उनका वतीरा और तरीकाकार देखें कि जो लोग उनके ब्लॉक में रहे, जो उनके पार्टनर्स रहे, सबसे ज्यादा बुली भी उन्हें किया गया, सबसे ज्यादा आर्म ट्विस्टिंग भी उनकी की गई, उनको सबसे ज्यादा जो है वो पनिश भी किया गया। पाकिस्तान को 74 साल में अमेरिका से जो कुछ मिला उसकी आप एक व्हाइट पेपर निकालें, आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की सूरत हाल पे पाकिस्तान के ऊपर सारा मलबा डालने की कोशिश की, क्योंकि पाकिस्तान जिम्मेदार है अफगानिस्तान का। जंग आपने की, वहां पर पॉलिसी आपकी चलती रही, सब कुछ आपने की और मलबा उठा के डाल दिया पाकिस्तान पे। वो साल 2021 जिस वक्त पाकिस्तान
अमेरिका के लिए सबसे अहम मुल्क हो सकता था। उस साल नया सदर आता है जो बाइडन, और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के साथ गुफ्तगू नहीं करता। फिर जवाब में देखें वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो पॉलिसी अपनाई, उन्होंने कहा मैं CIA के डायरेक्टर से मिलने से इनकार नहीं करूंगा, मैं वेंडी शर्मन जो उनकी नायब वज़ीर खारजा है मैं उससे मुलाकात नहीं करूंगा। उनके जो तवातर के साथ इंटरव्यूज हैं जो उन्होंने गुफ्तगू की CGTN के साथ, चाइनीज मीडिया के साथ, Axios और HBO के साथ, जो उनके मुसलसल इंटरव्यूज हैं आप उनमें देखें, पाकिस्तान का जो टिल्ट है या पॉलिसी है वो चेंज होती नजर आ रही है। और जो रशिया टुडे को उन्होंने इंटरव्यू दिया एक दिन पहले इस दौरे पर जाने से, और उसमें जो उन्होंने गुफ्तगू की और ईशान नकवी साहब, लेकिन बहुत से लोग जो फॉरेन अफेयर्स के मामलात को देखते हैं वो कहते हैं कि खान साहब को ये कहने की क्या जरूरत थी, एब्सोल्युटली नॉट, वो तो अड्डे मांग ही नहीं रहे थे। और जिस तरह से खान साहब इस मामले पे फ्रंट फुट पे खेले हैं, तो वो ये कहते हैं कि सफारती जुबान में तो इस तरह से नहीं किया जाता जो खान साहब ने किया। अच्छा, ये काबिल बहस है ये बात, इस पे आर्गुमेंट्स और काउंटर आर्गुमेंट्स दिए जा सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को समझते होंगे कि ये गलत किया गया, लेकिन एक बहुत सेट ऑफ पीपल है जो कहते हैं बिल्कुल ठीक किया है। आप ग्रास रूट लेवल पर जो अवाम है इस मुल्क के, जो मैं उनकी बात नहीं कर रहा जिन्होंने अमेरिका में तालीम हासिल की, किसी वॉर कॉलेज से, किसी ने वहां से किसी और यूनिवर्सिटी से पास आउट किया, अगर किसी का बिजनेस है, किसी के रिलेटिव्स रहते हैं, किसी को ग्रीन कार्ड मिला हुआ है, किसी को चाहिए ग्रीन कार्ड, किसी के और इंटरेस्ट है, या किसी का माजी जो है उसमें अच्छी याददाश्तें अमेरिका के साथ जुड़ी हैं। बात यह है कि आप सबके साथ अच्छे ताल्लुकात रखें ना। रूस जो है उसके साथ आपका ताल्लुक जो पहले सोवियत यूनियन था, बाद में जो कुछ पाकिस्तान का माजी का ट्रैक रिकॉर्ड है, आपने कब उससे निकलना है? आपने उसी तरीके से रहना। ज़ाहिर है लोगों की अमेरिका के लिए मोहब्बतें भी हैं, बहुत सारी होनी भी चाहिए। मैं तो ये नहीं कह रहा, और मेरा नहीं ख्याल कि ये सोच कहीं पर भी मौजूद है पाकिस्तान में कि आपने अमेरिका के साथ कतई ताल्लुक करना है और रूस और चीन के साथ उसके बदले में ताल्लुक बनाना है। असल बात यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो बात की वो ज्यादा बेहतर तरीके से हो सकती थी या नहीं हो सकती थी। अगर ये बहस है सफारती एतबार से उनको ये करना चाहिए था या नहीं, मेरा ख्याल है कि वो कन्वेंशनल डिप्लोमेसी पे यकीन नहीं रखते वज़ीर आज़म इमरान खान। उनका तरीकाकार मुख्तलिफ है, और आपने 74-75 साल एक ही तरीके से ये सारा कुछ करके उसके नतीजे में देख लिया पाकिस्तान कहाँ खड़ा था। 2018 में हम खुद इस हवाले से गुफ्तगू करते थे कि पाकिस्तान रीजनली आइसोलेट हुआ है, पाकिस्तान जो है उसको दीवार से लगा दिया गया है, पाकिस्तान की बात नहीं सुनी जाती, पाकिस्तान को आलमी फोरम्स पर उस तरीके से पजीराई नहीं मिलती। 3 साल डाउन द 3 years डाउन द लाइन एक पॉलिसी है जिसके नतीजे में आप चीन जाते हैं, आप रूस जाते हैं, आप लेकिन अब रूस जाने के बाद पाकिस्तान का इंपैक्ट कितना रहा है इंटरनेशनल फ्रंट पे अगर जाए तो पाकिस्तान की अब कितनी जो है वो असर रहेगा, या आइसोलेशन से निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा,